السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کی ہیں اور تمام صفتیں اللہ کی۔ آج کے اس تعلیمی بابرکت مجلس کے صدر محترمہ ڈاکٹر لودھی صاحبہ، یہاں پر جمع تمام معزز خواتین، خصوصاً دارالعلم اور اسکول نمبر 1 اور ماڈل کے جی کے جو سرپرستان یہاں پر ہیں موجود، خصوصاً آج اس دارالعلم کے لیے ایک ڈی ڈے ہے، اس لحاظ سے کہ آج ان کے اسکول کا سنگ بنیاد شام میں انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ ادارے ایسے قائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے سر و سامانی کے ماحول میں ہی نحمد و نصلی علی رسول کریم، اور تمام تعریفیں اس کے بعد اللہ تمام کرتے ہیں، غیر سے مدد بھی کرتے اور تمام صفتیں اللہ، اور یہ اس کی مثال ہے۔ آج کی اس تعلیمی ادارہ قائم کرنے جا رہا ہے مجلس کے ڈاکٹر صدر محترمہ ڈاکٹر حذیفہ عبید صاحب اور ان کے اہلیہ پرنسپل، یہاں پر جمع تمام صاحبہ اور ان کے ٹیم، معزز اساتذہ خواتین، ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ خصوصاً ہم یہاں پر ہم نے جو پرومس کیا ہے آپ سے، آپ کے لیفلیٹس میں اور اس میں، وہ ساری باتیں آج یہاں پر آنے والی ہیں دارالعلم کے تعلق سے، اور اسکول نمبر 1 اور ماڈل کے جی کے وہ بھی جو سرپرستان کے والدین کا مطلب اگر صرف والدہ ہو تو کیا کریں۔ آج سنگل پیرنٹ دارالعلم کے لیے اطلاع کہیں پر ہے، اس لحاظ سے قوم پہ زیادہ دوست کہ آج ان کے اسکول کا سنگ بنیاد شام میں انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ کیا کریں، حالیہ ادارے جو قائم نہیں ہوتے ہیں، الیکٹرانک بیس کا سامان کے ماحول میں ہی پورا سماج، پورا معاشرہ، سبھی لوگ آ چکے ہیں، اور اس سے اپنے بچوں کو یہ کوئی اس کے بعد مدد کرتے ہیں، غیر سے پہلے جو ہے وہ یوں، اور یہ اس کی مثال ہے موبائل دو کہ آج جو ادارہ لو پڑھ رہے، کووڈ کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا، کچھ ایسا ہوا کہ یہ موبائل لو ان کے اہلیہ اور پڑھو پرنسپل، تو یہ جو آن لائن وغیرہ ہے ناز ہے اس کو بھی دیکھنے ہیں، ایسا لیکن ان کی محنت فارچونیٹلی یا فارچونیٹلی دس از گوئنگ ٹو اسٹے۔ ہم یہاں پر ہم نے جو موبائل کا یہ معاملہ جو ہے یہ رہے گا، اس میں تو ساری باتیں آج یہاں پر کئی شکلوں میں یہ سیاست تعلق سے اپیج ہوتی ہے، ساری بات اس میں یہ سارے معاملہ کب رہیں گے، وہ بھی گوئنگ ٹو اسٹے نا، کہ والدین کا مطلب اگر صرف والدہ ہو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا کریں گے ہم یہ سنگل پیرنٹس اگر ایسا کوئی بات نہیں ہے تو یہ مسلم قوم کیا، کوئی سے بلا کہتا ہے، کوئی سے وبا کہتا ہے، ہم ہر اس میں کیا کریں، اس کو ریفر کریں گے قرآن۔ حالیہ جو یلغار ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کی اور اس کی دنیا، پورا سماج، پورا معاشرہ، سبھی لوگ آ چکے ہیں، اس سے اپنے بچوں کو یہ کوئی دین ہے، اور اس قسم کو بلا وبا کہنے کی وجہ یہ امتحان ہے جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پورا حق ہے امتحان یہ ہوا کرتا تھا جب بچے موبائل دو طریقے سے امتحان کتاب لو، اسپینش فلو آیا تھا، کووڈ کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا، اس کے علاوہ اور بیماریاں آئی ہیں، موبائل لو اور پڑھو ون آ گیا، تو یہ جو آن لائن وغیرہ جو ہیں وہ یہ اس بورڈ کی دینے میں، لیکن یہ تو قدرتی بیماریاں ہیں یا فارچونیٹ مین میں انسان سے کوئی کسر ہے کئی ایسے آدمی، یہ موبائل طریقہ یہ معاملہ جو ہے یہ رہے گا۔ 9 اگست 1945 کو ہیروشیما کئی شکلوں میں سیاست قانونوں پر اپیج ہوتی ہے، ایٹم بم، نیوکلیئر بم، یہ سارے معاملہ کب رہیں گے، وہ جب وقت میں ایسے سارے گول جو ہے بڑھ جاتا ہے، کیا کریں گے ہم اس کے مالک کائنات کو پورا حق ہے
पर ये पूरी की बात नहीं ले और लेते हैं। ये क्या था, कोई से बला कहता है, हम से वबा कहता है, हम इम्तिहान लेते हैं, हम हस्ब मामूल खाली किसी को रिफर करेंगे कुरान अमीरी देकर, अगर शोहरत देकर, किसी को गुमनामी देकर, किसी को दौलत दुनिया, किसी को एक मुफ्ती देकर, किसको शोहरत देकर, किसको गुमनामी देकर, कोई औलाद देकर, किसी को लाला बाबा कहने की वजह ये इम्तिहान मेरे की आजमाइश, अल्लाह ताला को पूरा हक है इम्तिहान लेने का। ये आजमाइश अल्लाह ताला इस तरीके से ये हुई है। 100 साल पहले भी स्पेनिश फ्लू आया, 32 से सबसे ज्यादा शिकार हुई। उसके अलावा कई और बीमारियां बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई नहीं देते, और बैक्टीरिया ने सारी और कई बीमारियां करके वो सबसे ज्यादा हमारे आलमी निजाम, ये तो कुदरती बीमारियां था, उसमें क्या आ गया, मैन में इंसान की तकलीफ करते हमारे वालिदैन की बड़ी अक्सरियत ये 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर इंसान की बस्तियों पर एटम बम डाले गए, नहीं गए, वो 2-3 साल जवाब नहीं गए, तो क्या फर्क, ऐसे सारे इम्तिहान तो स्कूल तालीम के कायनात को क्रॉस करके भी हमारे वो इम्तिहान मुस्तकिल बन सकता है, करियर बन सकता है। ये अभी इम्तिहान लेते हैं वालिदैन के ज़हनों में, अभी किसी को मुफ्ती से देकर, किसी को अमीरी देकर, हम बात करते हैं 2 साल शोहरत देकर, किसी को गुमनामी देकर, बच्चों किसी को दौलत देकर, किसी को ऐसा बताइए मुफ्ती से देकर, क्या हमारा बच्चा रोज शोहरत देकर, 500 रुपए देकर, कुछ को औलाद देकर, किसी को लाभ वाले थोड़ा बेच के, कुछ भी बेच करे मेरे की आजमाइश रोज शाम के 500 रुपए आजमाइश हमारे वालिदैन के नजरिए में करियर बन गया। लेकिन बदबख्ती से वालिदैन सबसे ज्यादा बीमारी माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और वो बैक्टीरिया ने बच्चे को हम बच्चा आसानी जाता है, सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ हमारे निजाम, बच्चा जो है वो भी जिंदगी से बाहर करना चाहता है। बदबख्ती से हमारे वालिदैन की बड़ी अक्सरियत ये सोचने लगी, स्कूलों पे जो ताजे लगे बड़े गौर कीजिए, हम बात यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, घर जो जमा हुई है ये सोचने जमा हुई, और अच्छी बात कि 2 साल बच्चे स्कूल में नहीं गए तो क्या फर्क, लेकिन उसमें जो वालिदैन और नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा, स्कूल तो स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे को बाईपास करके भी छोड़कर कुछ इसको बाईपास करके बन सकता है। ये बड़ी ख्याल चला गया, लेकिन ज़हनी कोई 3 साल 5 साल वाला कोर्स वालिदैन के ज़हनों में बचे रहे, अभी भी वो कबूल करने को तैयार नहीं है। इसके हमारा बच्चा रोज शाम को 500 रुपए देख चुके हैं कि कुछ क्या परसेंटेज है ड्रॉप आउट थोड़ा बेच के, कुछ शहरों में कस्बों में हर जगह रोज शाम के 500 रुपए बच्चे जो हमारे वालिदैन के नजरों में करियर बने। हमारे 4-5 बच्चे हम नहीं समझ सकते, ये जो है वो है कभी वालिदैन के ज़हनों में आ गई। साथ में स्मार्टफोन मोबाइल ऑनलाइन से कर गए, हर में आसानी जाता है। 90-95% बच्चा जो है यहाँ से जिंदगी से बड़ा हासिल करना चाहता है, तो उससे पहली बात ये कि ये वालिदैन अब खुसूसन स्कूलों में ताजे लगे बड़े इस मामले में उतना महंगा है, घर जो जमा हुई है भूल जमा हुई, और अच्छी बात हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में, लेकिन कोई ऐसी वालिदैन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि स्कूल से हम तालीमी इदारे इनको जो है छोड़कर सिलेबस क्या कहता है पास करके हिस्ट्री पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, और बोलने चला गया। ये दीन ने हमारे बताया, ज़हनी कोई वालिदैन का मतलब हमारे दीन ने जब हिदायत कर दिया, अभी भी वो कबूल करने को तैयार नहीं है, इस वक्त मर रहे हैं, हम सब ये कर रहे हैं। इस निजाम का जो अल्टीमेट गोल देख चुके हैं कि कितने हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, शहरों में कस्बों में हर जगह जन्नत से आए हैं, डॉक्टर लगते हैं दोबारा हमको जन्नत में जाए और उसको बच्चे पैदा करने चलेंगे, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। 4-5 बच्चे हम नहीं समझ सकते वो जन्नत, इसके लिए हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाया है, वो जन्नत। साथ में के स्मार्टफोन मोबाइल कुछ लेके भी नहीं गए, ऑनलाइन से महरूम रह गए, कर गए, और उसी जन्नत का दरवाजा जो है वो चुका है। अब यहाँ से हम आगाज के साथ इस सिलेबस में आपके निसाब में आगाज का मर्तबा जाहिर कर वालिदैन कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, माँ सब उसूल कोई कुलियत मामला नहीं है, ये बात है आप दोनों का। तो इस ताल्लुक से हमारे निसाब में हमारे
सिलेबस नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है हमारे को जिससे हम इंसानी बच्चों की काफी 10 साल की उम्र तक सिलेबस क्या कहता है, हिस्ट्री पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, वो नकल करता है और कुछ नहीं। वो 10-12 साल दीन पे हमारे बताता है, तब उससे मालूम करता है हमारे दीन में जब मैदान का आ गया, वो कौन बड़े बड़े लोग की जन्नत जिसके लिए हम सुना रहे हैं, नहीं रखता किसी से भी। हमारा जो अल्टीमेट गोल है किसी सामने देखा जो किसी से हमारा लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है, 10 साल के हम एक जन्नत से आए हैं तो दोबारा हमको उसके रोल मॉडल उससे पैदा करने हैं, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। और सिर्फ माँ बाप वो जन्नत जिसके लिए जो तुमने लॉन्ग टर्म गोल बनाया है सोचते नहीं है, वो जन्नत माँ के पैरों तले। हम कभी ये हमारे दीन का एक और उसी जन्नत का दरवाजा जो है वो बाप है, ये हमारे दीन में बड़ा आपके सिलेबस में आपके निसाब में और मतलब जाहिर करने वाला छोटे कोई सब्जेक्ट जो होते हैं कोई ऐसा उसूल कोई बाप क्या है लगा के चलते हैं, ये बताया हमको क्यों, तो इसको हमारे साथ करना क्या, हमको बड़े 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 अब्बा के जूतों में अपने छोटे पांव डालते हैं, चलते हैं, जूते पढ़ते हैं। इंसानी बच्चों की ये फितरत क्यों, पापा की 10 साल की उम्र तक वो सिर्फ पूरे नकल क्यों होते हैं, ये कितना अच्छा मौका दिया है इंसान को, मौका प्रदान किया है अल्लाह ने। 10 साल की उम्र तक जाता है आप से बच्चों के आप और सिर्फ आप रोल मॉडल हैं, आत्मा को बड़े बड़े लोग होंगे कि जिंदगी भर से वाकई नहीं रखता आप भी उसके महात्मा गांधी सर सामने देखा किसी हीरो को या किसी स्पोर्ट्समैन को वैसे रोल मॉडल नहीं बनाए, उसके रोल मॉडल बनाने का एक ये मौका दिया वो अल्लाह ताला ने इंसान वही रोल मॉडल हर तरीके से ये दिया। हम कभी और नहीं करते, कभी सोचते और ये कनेक्शन कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जो आ रहा हूँ तरबियत के पहलुओं की तरफ, लेकिन जरा सोचिए कि ये कनेक्शन कैसा होता है। आमतौर पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, अब कभी गौर बच्चे हमारे बदन में होता है कि छोटे बड़े बूढ़ी औरतें भी हमेशा कहते होते हैं उसके अब्बा क्या है ना लगा के चलते हैं माँ बनने वाली से कि भाई क्यों देखो जरा अब्बा जैसा बहुत पॉजिटिव रहो और बड़े बड़े अब्बा के जूतों में बच्चा जो है डालकर अच्छा चलते हैं, नीचे पढ़ते हैं, वो एक बच्चा पैदा हुआ की नकल करते हैं, फिर कुछ भी करेंगे तो चले पूरे नकल क्यों होते हैं, कोई मसला नहीं। कितना अच्छा मौका दिया है इंसान को, मौका फराहम किया है अल्लाह ताला ने। बच्चा जब 10 साल के बदन में है, अगर आप के बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हैं और बच्चा सोचो ऐसा है पर बच्चे की जिंदगी भर के लिए आप भी उसके रोल मॉडल साथ किसी हीरो को, फिल्मी हीरो को या किसी प्लेटफॉर्म पर किसी को भी अपना रोल मॉडल नहीं बनाइए, गरीब रोल मॉडल बनाने के बाद ये मौका वो अल्लाह ताला ने इंसान के वहां पर सोई दी है तरीके से और उसका दूर है उसका ये कनेक्शन कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट हमें सोया होगा। मैं बड़ी बात शुरू जो आ रहा हूँ बस ट्रेनें गुजर रही की तरफ चीखती चिंगारती घटना सोचिए ट्रेनें ये कनेक्शन कैसा गुजर रही है। आमतौर पर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चा माँ के बदन होता है दंदना तो बड़े बूढ़ी औरतें भी हमेशा वहां से गुजरती हैं उस माँ की माँ बनने वाली से कि भाई लेकिन देखो जरा अच्छा सोचो उसका बच्चा होता है बहुत बड़ा पॉजिटिव रहो, बहुत अच्छा सोच बड़ा हो बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है रोता है, अच्छे असलात होने चाहिए, माँ की आँख खुल जाए। वो एक बार बच्चा पैदा हुआ ना अपनी चिंगारती दंदना के ट्रेनों से आवाज जिस माँ की नहीं खुलती जो है कोई ची करके उसका बच्चा रोता है, यहाँ से बात शुरू कर तो वो जो है कि भाई बच्चा जब माँ के बदन में है क्यों तो अच्छा से सोचो, पॉजिटिव सोचो, बहुत अच्छे पॉजिटिव रहो, बहुत अच्छा सोची है माँ एक बार बच्चे पर दुनिया में आ गया ना इसके आसाब जाग के साथ एक रिलेशन के प्लेटफॉर्म पर एक कनेक्शन है क्या है 4G 5G ये गरीब माँ ये दूर बड़ा बच्चा गरीब माँ से उसकी चीख करके आवाज उस मतलब बच्चा पैदा होने के बाद भी दूर है उसका माँ से अटैच रहता है, वो भी सोया होगा। साइंस इस पर कोई तय नहीं गुजर रही है ना करेगी ये कौन सा कम्युनिकेशन है 5G 6G क्या है माँ से हमेशा अटैच रहता है और जिंदगी दंदनाती ट्रेनें
वहां से गुजरती हैं خواتین उस माँ की आंख में آپ کا بچہ جو ہے करके وہ پیدا ہونے کے بعد میں پڑا ہوا ہے آنے کے بعد میں بھی دور پڑا ہوا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے اٹیچ اس ماں کی آنکھ کھل جاتی آپ کا رول کتنا اہم اور جتنی چنگار کی دندنا کی برینوں سے آواز جس نے مثال دی ماں باپ کا رول کتنا اہم بچہ کا امپورٹنٹ ہے میں ماؤں کی طرف سے خاص بات کرنے والا ہے لیکن دونوں کا ابھی فی الوقت کی ماں میں کھل جاتی کیوں اس میں ایک مثال دی ماں ہے ایک جگہ پر بچہ اس میدان میں میونسپلٹی کے بچے کے دو ملازم اس کے باپ جاگ رہے ایک آدمی ایک کدال دیتا ہے اس سے گڑا ہوتا ہے نہیں پھٹتا یہ کون سا دوسرا آدمی آتا ہے کوئی چیز بھائی چیز کیا اس سے پہلا والا آدمی جو ہے دور بڑا بچہ جو ہے مٹی بھرتا ہے اس کی چی کر کے آواز نہیں کرتا ہے ایک آدمی کھڑے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی تم اتنی محنت سے ماں سے اٹیچ رہتا ہے آدمی آتا ہے مٹی بھرتا ہے سائنس اس پر کوئی تحقیق نہیں کر سکتی تم کو معلوم ہے کیا نہ کرے گی میونسپلٹی کی یہ کون سا کمپٹیشن ہے بھائی جی اس کی کیا ہے میرا کام یہ ہے کہ میری ماں سے ہمیشہ اٹیچ رہتا ہے دوسرا اور ایک آیا ہے دوسرا ایک اور آدمی ہے آج غیر حاضر ہے کام پہ نہیں آیا ہے اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اندر بچہ جو ہے اور یہ تیسرا آدمی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ دنیا میں آگے بعد میں بھی ابھی دوسرا آدمی بیچ ڈالنے والا آدمی آج غیر حاضر ہے ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے ہم اپنا کام کیے جائیں آپ کا رول کتنا اہم اور اس پورے پروسیس میں یہ گڑھے کھودنے کا اس کے لیے ایک مثال دوں گا ماں باپ کا رول کتنا ہے دوسرا آدمی بیچ ڈالنے والا آدمی حاضر ہونے کی وجہ سے مقصد ہی ختم ہو گیا اس میں دوسرا آدمی ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ایک میدان میں میونسپلٹی کے اور وہ لازمی وہ ہے ماں باپ کیا ہو رہا ہے آدمی ہمارے معاشرے میں آج ہمارے سماجی نظام میں تعلیمی نظام میں کیا ہو رہا ہے دوسرا آدمی آتا ہے ٹیچر جو ہیں پھر سے پہلا والا کام جو ہے منہ پہ گڑا کر دینا ہے گڑا کھود نہیں پڑتا ہے بچے گھر پہ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں ایک آدمی کھڑے کھڑے گڑا نہیں پڑتا لیکن دوسرا بات ہے بڑھ گئے تم اتنی محنت سے یہ گڑے موٹیویٹ کرنے والا یہ آدمی انسپائر کرنے والا بڑھتا ہے ہمت افزائی کرنے والا آدمی فکر کرنے والا آدمی آگے بڑھنے والا آدمی میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملازمین زیورات کو بھیج ڈالوں گی یہ کہنے والے کام یہ ہے تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے کھیت کھلیان کو بھیج ڈالوں گا دوسرا اور آیا ہے یہ ماں اور باپ دونوں رائے رکھتے ہیں اور اسی لیے ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا روک نہیں رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچر اتنی محنت کری بچے اتنی محنت کری جب ماں باپ بھی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا نہیں کر سکتے اور اسی لیے ہم نام معاشرے لگا رہے ہیں دوسرا آدمی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جس دن معلوم ہو گیا حاضر ہو جائیں گے یہ دوسرا آدمی ہر زمانے میں ہمارے معاشرے میں مستقل ہے پرماننٹ ایبسنٹ ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں سماجی نظام میں تعلیمی نظام میں کیا ہو رہا ہے کہ ٹیچر جو ہیں ہمارے کام کے عموم سے بچے گھر جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں کر رہے ہیں رٹ رہے ہیں سارے ہمارے دوسرا اور دوسرا بیچ ڈالنے والا اٹھتے پرندے کے بڑے کرنے والا انسپائر کرنے والا لیکن وہ افزائی کرنے والا آدمی بھی تصور والا آدمی آگے بڑھ کہنے والا ہمیں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے زیورات کو بھیج ڈالوں گی کہنے والی ماں میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے کھیت کھلیان کو بھیج ڈالوں گا کہنے والا باپ اکثر ماں اور باپ دونوں غیر حاضر ہیں اور اسی لیے ہمارے آنکھ میں تعلیم کا پودا رک نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا فائدہ اس میں ہے بچے اتنی محنت کریں جب تک ماں باپ اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا بچے کا دوسرا اسکول ہے اور اسی لیے لگا رہے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جس دن ماں باپ دوسرا پر حاضر ہو جائیں گے اب یقین رکھیے کہ ہر آنگن میں ہمیں تعلیم ہے آپ کے بچے کا اسکول نہیں اتنا کالج نہیں اتنا یونیورسٹی ہے اتنا کی رول ہمارے سارے بچے سارے 10 اپنے گھروں میں کیونکہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نارملی میں آتا ہوں بیٹھنے سے باہر سیکھنے کے لیے بچہ بھی ہمارے میں ایک صاحب کو اور پوچھا تو ابا جب نے یہ پڑھائی سکتے ارے آئیے عقید کا چاند لے کے اب وہاں
चाहिए, मिलना चाहिए हमको, वो भूल जाते हैं। 10 मिनट के बाद निसार भाई जैसे निसार भाई चले गए, अक्सर भूल जाते हैं कि जिस स्कूल की तरफ हम जा रहे हैं आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है, तो उनको भी चाहे आपके बच्चे का पहला स्कूल है, अरे वहाँ तो वहीं से जाने का, यहाँ का एक और निकलता हाँ बच्चे आपका अरे बच्चे का दूसरा स्कूल है, निसार भाई का जान निसार हो रही है, घर में क्या हो रहा है, कोट कपड़े से निसार बच्चे बच्चे साजी शून की ये हो रही है, प्यार मोहब्बत घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, घर नहीं, आपके बच्चे तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मुझे बताइए ये जो गीबत है आगे कोई स्कूल नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज नहीं, दुनिया में धरती पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, गीबत नाम का सबके हमारे सारे हमारे घर का स्कूल है, 10 घर की यूनिवर्सिटी कैसे याद नेशनल मिसाल ये सब्जेक्ट एजुकेशन आपको आनी चाहिए, जो बैठा हुआ है कुछ भी हो जाए, ये जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वो सब्जेक्ट्स हैं, आप हर के जो वहाँ जैसे हैं वो है पढ़ूंगा वो असर और गीबत से चले गए, ये जो है अब्बा कहते हैं ये घर के सब्जेक्ट हैं, खा गया था यहाँ घर के तुमको भी चाय बनाने के घर मेरा भी टाइम गया, अरे वहाँ कॉलेज नहीं से जाने वो तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज यूनिवर्सिटी अरे यूनिवर्सिटी नुमा घरों का हाल क्या है जान भी सार हो गई, कोई और मिसाल और जैसे ही बच्चा पढ़ रहा गीबत हो रही है, बच्चा तारीख की किताब आपके बच्चे का स्कूल नहीं, हिस्ट्री की किताब कॉलेज नहीं, उसमें वो लड़ाइयों के बारे में पानीपत की पहली लड़ाई जो गीबत वगैरह वगैरह सब ये लड़ाइयों के बारे में, ये कौन से स्कूल में सब लड़ाइयों के बारे में पढ़ते पढ़ते दुनिया में घर का कौन सा स्कूल है यहाँ पर गीबत नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अब्बा हमारे घर का स्कूल है, लड़ाई की यूनिवर्सिटियों के सब्जेक्ट से शुरू हो जाती है, याद बाबा का एक सुन ये सब्जेक्ट्स को फर्स्ट एजुकेशन आपको आनी चाहिए, और फ्रांस के दरमियान कुछ भी हो जाए, ये जो स्कूलों के सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स साइंस वो सब्जेक्ट्स हैं, और हर एक जो और फ्रांस के दरमियान क्यों हो जाएगा असर और कैसा बचना गीबत से कैसे बचना, क्यों हिसाब करें ये जो है क्यों घर के सब्जेक्ट हैं, बच्चा होता है बस अम्मी घर के अब्बा ये भी कहा कि मार्केट हो गया है कि स्कूल नहीं कॉलेज नहीं वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, लेकिन आज इन घरों में हमारे घर या यूनिवर्सिटी हाल क्या है ये बताने के लिए आपको एक और मिसाल, माँ बाप की अनाथ की जंग में जीतता कौन है, बच्चा तारीख की किताब पढ़, हारता कौन है, उनके बच्चे हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा है, मुसलसल हारते लड़ाइयों के बारे में पानीपत की पहली लड़ाई, आपके बच्चे दुनिया के फर्स्ट सेकंड वगैरह 95 लड़ाइयों के बारे में, थर्ड फोर्थ 75 लड़ाइयों के बारे में पढ़ते पढ़ते अपने आप को 45% में 10 पास नहीं हो रहा है, क्या अब्बा नहीं ये लड़ाई वाला बच्चा ऐसे स्टूडेंट पास क्यों नहीं हो रहा है, ये माँ बाप की छोटी है ना जंग फर्ज तरह की बेड़ियां आने में उसको आगे बढ़ाने से दरमियान कुछ इख्तिलाफ ये मामला है, ये हमारे घरों का ये हमारी फौरन टोकती है, सुन लीजिए अमेरिका और फ्रांस के दरमियान रिश्ता जो हो जाएगा, अगर फरमाते हैं इस मिसाल के हमने सुकून हासिल कर सकते, अब्बा हो गया ये लड़ाई पीस ऑफ माइंड के अगर फरमाते हैं हमारे घर इस लड़ाई का से करेगी सिर्फ माँ बाप की झूठी जंग में भी और मेरे बच्चे का कौन है ठंडक करता हारता कौन है, आंखों पे ठंडक के लिए मुसलसल हारते रहते हैं जिंदगी की जंग, कभी सुकून के लिए हमारे घर के है आपका बच्चा दुनिया के 95% और 75% ये हार 65 45% 89 जो औलाद आपको अल्लाह ने दी है 95% नहीं है, क्योंकि 10 पास क्यों नहीं हो रहा है, या औलाद जो आपको अल्लाह ने दी है जंग उसकी बेड़ियां बने हुए
नहीं आगे बढ़ने नहीं देती है कि औलाद नियामत है, औलाद नियामत है, औलाद नियामत है। अरे इसको चेंज करो जुमले को, ये कहना शुरू करो कि औलाद अमानत है, या अल्लाह की अमानत है आपके पास कि हमने तुम्हारी नियामतें पैदा की है, अमानत है अल्लाह की, जब टेस्ट का बदलाव हासिल कर ये जान लो तुम्हारा माल और तुम्हारी दुआ से और दो आजमाइश में अल्लाह मेरी बीवी और मेरे बच्चों से मेरे आंखों को ठंडक आंखों की ठंडक के लिए और मियां बीवी का रिश्ता है ईमान वाले दीन कल से सुकून अपने आप हमारे घर के आपकी बात नहीं हो रही बचाओ अपने आप को और अपने अहलियार को बीवी बच्चों को भी उस आग से जिसका ईंधन औलाद आपको अल्लाह ताला ने दी है, ये खिलौने नहीं है। रिपीट, पत्थर आग में जल गया औलाद जो आपको जलाया जाए है और ये बताया जाते कि खेल दुनिया के बारे में नहीं है। क्या औलाद इतनी उम्र उम्मत है, औलाद नियामत है और तहज्जुद में छूटते हैं। अरे इसको चेंज करो जुमले को, क्या है ना वो ये कहना शुरू गुजर गया औलाद अमानत है, या अल्लाह की अमानत है आपके पास। कुरान की आयत के तहरीर की ये बतायामत है, नियामत है, मेरा अमानत है अल्लाह की। जब टेस्ट का बदला अगर वक्त गुजरने के बाद औलाद को खेल खिलौने वजू करने की उसको तौफीक नहीं मिलती, इसको वो डायरेक्ट मेरे हाथ में उठाया जाएगा, मेरे खाना मान और तुम्हारी तहरीम की हमारे लिए मेरी तरबियत में कोई खोट थी कहानी और दो साल से कामयाब हुआ अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा अजर है हमको। अगर फरमाते हैं सूरह तहरीम तुम्हें 66 मामला यहाँ पर और शुरू से क्या होता है ईमान वाला क्या होता है, बचाओ अपने आप हमारे अपने आप की बात चौथी बचाओ अपने आप नहीं कहा गया और अपने अहलियार को बीवी बच्चों को मर्द आग से इसका बंधन इंसान और पत्थर है। हमारे मर्द हजरात जो हैं कौवाम का ट्रांसलेशन बड़ा गलत है, पत्थर आगे जाएंगे मतलब बिना जलाया जाएगा और ये बताया जाते कि उसमें अपने आप को इस एक्सटेंट की वो पाँव की नहीं समझना बाप हमारी इतनी उम्र और नहीं हमारी नफी रहने इसलिए छूटने छूटते हैं घर जो है इंस्टीट्यूशन वो बेटा है ना और बाप जो है नमाज यूनिवर्सिटी से गया वो घर यूनिवर्सिटी है बाप उसका चांसलर है कुरान की और माँ जो है उसकी वाइस चांसलर है कि मेरा असम अल्फाज या बेटी वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर गुजरने के बाद है घर का वजू करने की उसको तौफीक नहीं मिलती तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से होता है मेरे अकाउंट में दिखाई मेरे खाते में दिखाई सुन ली सूरह तहरीम की क्या मेरी तरबियत में कोई मर्द और औरत में अल्लाह ताला की वजह से फितरी तौर पर कुछ अलग अलग खुसूसियात दी हमको उनमें से एक खुसूसियत क्या है ये है मामला औरत जो है वो जज्बाती कैसे होता है इमोशनल क्या होता है इसका नुकसान ये होता है कभी वो जिसमें कहा गया है कि मर्द कि उसका फायदा ये होता है मर्द जो है वो औरत फायदे का पहलू नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने मर्द अल्लाह का निवासियों पर जान कुर्बान कर वो कहते हैं कि उसकी वजह से होता है उसमें मर्द दिस एक्सटेंट मामला एक समय है कि उसकी अवाज नहीं किया उसके फ्रीडम एयरपोर्ट ये है घर जो है अनानियत पसंद वो बाप जो है वो कभी आप घर का यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो सॉरी घर और यूनिवर्सिटी है तो बाप सॉरी चांसलर है अब और माँ जो है आज वाइस चांसलर ये है असम अमीर है राजी आदमी का उसका ये वो सब वो और कितने एडमिनिस्ट्रेटर है एक तरफा मुंतजिम है घर का भूल गया उसमें करने ये वार हमको समझ रहे हैं सॉरी नहीं बोल होता हाँ ठीक है मामला कहाँ पर सॉरी इसके विषय में नहीं होंगे ये मर्द और औरत से फितरी तौर पर होता है शॉर्ट टेम्पर्ड या इनमें से एक खुसूसियत मैं ये हेड हूँ कि औरत जो है वो जज्बात लेकिन उसका ये फायदा उस अनानियत पसंद का उसका नुकसान ये फायदा भी है फायदा ये है फैसले हुए चट्टान की तरह खड़े रहता है कि उसका फायदा ये होता है ये जहां पर फायदे का पहलू औरत ये
बिलक बिलक के रोती है कि वो अपने डांस जो है और अपने बच्चों को जान कुर्बानी रहता है जज्बा आम तो ये सोता है क्योंकि वो इमोशनल ये जो औरत की जो मर्द का मामला के साथ ये है और इसका जो अनानियत पसंद होना इनके अगर पॉजिटिव दो वोट हैं अगर मिल जाए तो अनानियत पसंद हर संसार में खूबसूरत हो जाए तो कभी आप बाहर हो जाती है सॉरी नहीं बोलते सॉरी ट्रेडिशनल में है उनको ये सॉरी बोलेगा आपने बोले मेरी मिस्टेक है आपको ये है बच्चों की तरबियत पीर है और जल्दी आने का मुझको ये वो सब है बच्चा मां के बतन में एक तरफा बच्चे की तरबियत शुरू हो रही है इनमें इतवार है जब आप इंतहा पढ़ते हैं अपने लाइफ पार्टनर जब सॉरी ट्रेडिशनल में नहीं होता मर्द जब लड़का जो है उसका इंतखाब किया जाता है इगोइस्ट होने की वजह से उसका बैकग्राउंड देखा जाता है क्या होता है खानदान की हिस्ट्री देखी जाती है यार ये जो है जेनेटिक प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं ये बताने का उसको ये रहता है सारे लेकिन देखेगा ये फायदा उसका मांगने से पसंद का सिलेक्शन फायदा भी है फायदा वहां से शुरू हो जाता है तो एक चट्टान और फिर जो है वो गाड़ी आगे यहाँ पर कभी उस मेहनत लग के रोती है वहां पर वालिदाओं की तरफ से गलती ये होती है अब कोई खड़ा रहता नहीं माँ दिख रहता है आमतौर कि अपनी बेटी को ये जो औरत की जो अपनी बेटी को इमोशनल होना और इसका जो अनानियत दस देखते हैं कई से अगर पॉजिटिव दो पॉइंट्स लेकिन उसमें मिल जाए 10% सबक उसके जो होते हैं खूबसूरत हो जाए या उतने भी नहीं होते हैं वो बाहर हो जाती है बहू बन के कैसे उनको ये लेने को नहीं ये माँ की तरफ से और इसमें पहली मिस्टेक क्या होती है अच्छी बहू बन के कैसे तरबियत शुरू कहाँ से होती है ये बच्चा माँ के बतन में सिस्टम ये ऐसा होता है बच्चे की तरबियत शुरू होती है उल्टा हो जाए तो मर्द इंतखाब करता है अपने लाइफ पार्टनर उसको कंपलसरी करा जाता है कि वो जो है उस ससुराल में आके जब लड़का जो है उसका इंतखाब किया जाता है किसी को मिलने का नहीं उसका बैकग्राउंड देखा जाए ऐसा होने का क्या जिससे खानदान की हिस्ट्री देखी जाती है जो छोड़ छाड़ के जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं अपने फैमिली को सारे वालिदैन देखे जाते हैं बड़ी कुर्बानी है वहां से फिर जो है सिलेक्शन ऑफ और वहां से इस फितरी चीजों को हमको समझ और फिर जो है वो हम यहाँ गाड़ी आगे बढ़ती है कि क्या उसमें पर वालिदाओं की तरफ से गलती ये होती है जरूरत है माओ की तरफ से कि अपनी बेटी को कहां पर कोताहियां कहां पर गलतियां अपनी बेटी को जो है हम पहला ये देखते हैं वो कई कई सबक देती है अपनी माओ से लेकिन उसमें से 10% सबक उसके ये होते हैं माओ को उतने भी नहीं होते हैं कि अच्छी बहू बच्चों को क्या शिकायत है अपनी माँ से ये माँ की सारे बच्चे कहीं उनके पहले बहू शिकायत बन के बड़ी से रहने का होती है वो ये है वो कहे नहीं हमारी माँ सिस्टम ये क्या हमारे वालिदैन को मैं बोलता हूँ पड़ोस का बच्चा मर्द जो है शादी के बाद इंजीनियरिंग कर रहा है उसको कंपलसरी करा दिया है वो जो है उस ससुराल में आकर इंजीनियरिंग कर रहा है वो इंजीनियरिंग के लिए किसी को मिलने का नहीं है कि आपका बच्चा तो कैसा हो जाएगा क्या सिस्टम है इनकॉम्पिटेंट जो छोड़ छाड़ के जो आए हैं अल्लाह ताला ने अपने फैमिली कोई ना कोई अपने वालिदैन की है बड़ी कुर्बानी है वो हमको पहचानना है और इसमें हमारा रवैया क्या होता है उसको समझने से पहले पहले बात अपने एक समझ लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोटे प्यार से बड़े हद तक समझ लीजिए यहाँ पर मामला है इसको हम एक बड़ी समझने की जरूरत है हम बता रहे हैं कि धरती पर जितने बच्चे हैं तरबियत के काम से 5% वो जीनियस होती है हम पहले ये देखते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या शिकायत है बच्चों 5% अपनी माओ से 20% बच्चे जो हैं तो क्या शिकायत है इंटेलिजेंट माओ को ज़हीन होते हैं दोनों मिलाकर होते हैं पहले हम देखते हैं बच्चों को क्या शिकायत और बाकी 75% सारे बच्चे जो पहले बच्चे को है जो बड़ी एवरेज होती है वही क्या हमारे गांव क्या हमारे वालिदैन से बोलते हैं पड़ोस का बच्चा बड़ा अच्छा एवरेज इंजीनियरिंग कर रहा है मतलब वो इंजीनियरिंग के लिए होगा इसका मतलब ये नहीं है ऐसा बच्चा किया 75% बच्चे अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई आपका रवैया रखी है
उसको हमको होता है, इसमें हमारा रवैया क्या होता है, इसको समझने से पहले पेदाब होता है। एक समझ लीजिए, मोटे तौर पर सबसे बड़ी हकीकत समझ लीजिए, मर्दों ख़वातीन, एक बड़ी हकीकत ये समझ लीजिए कि इस धरती पर जितने बच्चे हैं उनमें से 5% बच्चे का रवैया क्या नहीं रहा है, जीनियस 5%। फर्ज कीजिए कि 90% बच्चे जो हैं, सारे वालिदैन सुन लें, इंटेलिजेंट, पढ़ाई में कमजोर हैं, ज़हीन और स्लो लर्नर हैं, दोनों मिलाकर होते हैं, तो उन ज़हन हैं, और बाकी 75% पर जो मेजॉरिटी एवरेज वो बच्चे कौन है, 40-45% मार्क्स देता है। पड़ोस का बच्चा जो है वो होशियार है, 90% मार्क्स देता है। अब आप क्या करें, वो देख रहे हैं कि वो एवरेज दोनों वही ये जो है वो लर्नर हत्ता की हुई और होगी 75% बच्चे क्या याद करें, पहली जंग अज़ीम में 10 को नहीं दिया, ऐसा बच्चा याद होता है, 15-20 उसने 10 के 10 वजूहात याद कर लिए। आपका रवैया क्या बच्चों क्या होता है, आपका बच्चा कमजोर है, आपका रवैया जो है वो 5 पॉइंट्स तक याद करता है, फिर छठे पॉइंट पे आते बोलते हैं अम्मी जरा पहला लफ्ज ना, पहला लफ्ज यहाँ जर्मनी में बेल्जियम पे हमला कर, अम्मी जरा पहला लफ्ज ना, पहला लफ्ज, तो हिटलर, हाँ हिटलर ने नाज़ी पार्टी कायम कर। क्या आपका रवैया छठे पॉइंट पे उसको रुकमा देना पड़ता है, सातवें पॉइंट पे उसको रुकमा देना। फर्ज कीजिए कि आप उससे उसकी गाड़ी आ गई, तो सारे वालिदैन सुन लें जिनके बच्चे पढ़ाई घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 5-6 पॉइंट ज़हन है, गाड़ी जाती नहीं है, उनके बाद अब अम्मी क्या करेगी। फर्ज कीजिए आपका बच्चा जो एवरेज 40-45 बच्चा जो है 90% तक मार्क्स दे। अम्मी अपने बेटे को क्यों मार क्या करें, वो देख रहे हैं दोनों वही, अम्मी अपने बेटे को क्यों मार रही है, अम्मी अपने बेटे क्या याद करेगी मार रही है कि उसका पहली जंग अज़ीम की वजूहात क्या थी, 2 घंटे तक उसको 50 मिनट है तो 15-20 मिनट याद होता नहीं है, 10 के 10 वजूहात याद करा दी अपने। अम्मी अपने बेटे को इसलिए मार रही है, आपका बच्चा क्यों पड़ोस के बेटे को जल्दी क्यों याद हो गया, 5 पॉइंट्स तक याद करता है। हम अपने दुखों से उतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के सुखों से परेशान है, यार वो सुखी क्यों है, अम्मी नकल मारी पहला लफ्ज, तो हिटलर, हाँ हिटलर ने नाज़ी पार्टी कायम की, वो 5 पॉइंट्स को याद होते हैं, छठे पॉइंट को उसको रुकमा देना पड़ता है, सातवें पॉइंट को रुकमा देना पड़ता है, उससे अल्लाह ताला ने ज़हानत की कोई गारंटी नहीं, आधा घंटा हुआ, नहीं 1.5 घंटा हुआ, 5-6 पॉइंट्स के आगे एक चीज का लिए नहीं है, इसका नाम है मेहनत। अब अम्मी क्या करेगी, मेहनत की गारंटी नहीं, जरा सोचिए नहीं करेंगे, सूरह 53 आयत नंबर 48 कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए अपने बेटे को क्यों मार रही है कि उसकी कोशिश देखी जाए, और ये कि उसके लिए उसका अज्र दिया जाए। अम्मी अपने बेटे को क्यों मार रही है, ये पुरानी अम्मी अपने बेटे को इसलिए नहीं मार रही है, पुरानी साख्ता है, 1.5 घंटा वेस्ट हो गया, 1.5 घंटे तक उसको 5 पॉइंट्स के ऊपर कुछ याद होता नहीं है। अब ये करने से पहले अम्मी अपने बेटे को इसलिए मार रही है, अरे अम्मी ये पड़ोस के बेटे को जल्दी क्यों याद हो गया, बड़े स्लो लर्नर्स हैं, हम अपने दुखों से उतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के सुखों से परेशान हैं, यार वो सुखी क्यों है। एक बेटा जो है वो 90% मार्क्स देता है, एक मारी था, इतने एक मेहमान आ गए समझिए, पापा जो है वो 90% मार्क्स वाले हैं, देखो मेरा बेटा कुरान मेरा 90% अल्लाह ताला ने ज़हानत की कोई गारंटी और तो 40 नहीं मिलेगा, इस आस में अल्लाह ताला ने मेहनत की गारंटी मिलने के बाद सूरह नजम अंदर आयत नंबर 39 उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है, मेहमान को रिश्ते हो और ये कोशिश देखी जाए और ये उसके लिए उसका अज्र दिया जाए, कोशिश बराबर कामयाब, एवरी सारी विजिबल सक्सेस। ये पुरानी इक्वेशन बेटा मेरा ही है, पुरानी साख्ता
करूंगा नहीं। एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। वो जो है वो उसमें हमको करना क्या मवाली है, मवाली। अब ये करने से पहले आप घर में और एक पार्ट 2 भी है, लेकिन अगर आप बात की ख्वाहिश होगी तो उनको बन के दिखाओ। ऐसे बच्चों के साथ में क्या होता है, जो अच्छे खासे बेटे पर जो है लेबल लगाएगी मवाली है, उनका रवैया क्या होगा? अम्मी जो है बन जाता है, आपका की ख्वाहिश है मवाली बन के दिखाओ। एक बेटा जो है ना 40-45% मार्क्स लेता है, लेकिन एक मेहमान आ गए, शोहरों का अब्बा जो है वो यहाँ उसके 90% मार्क्स वाले बच्चे का तारुफ कराते मेहमान। देखो मेरा बेटा अच्छी बात है, जब उसको 10 में से 5 पॉइंट्स याद हुए तो आप रोल मॉडल एक अच्छी माने क्या किया, मिसाली माने की क्या किया, आइडियल मदर बात किताब लेने के बहाने, बेटे को लेने के बहाने बोले उसका अंदर बहाया आते जाते रहता है, बेटा मैं अब्बा उसका नहीं तारुफ नहीं करा। वो रुदू होते ना तो फिर वो मेहमान खुद हुए 5 पॉइंट्स की याद नहीं है, पहले ही लगे में तुमको 5 पॉइंट्स की जो एक अभी हम जो है वो एग्जाम से 3 महीना पहले जब सेकंड बेटा मेरा ही है तो तुमको 2 पॉइंट्स और याद हो जाए, कितने हो जाएंगे? बच्चे को काउंट करने को बड़ा अच्छा, वो जो है 5 है ना, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करेंगे ना तो 2 पॉइंट्स और याद हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? अगर आप 10 पॉइंट से 9 पॉइंट के दिखाऊं पूरे महाराष्ट्र का टॉप करने के अच्छे खासे बेटे पर जो है लेबल लगाएंगे मवाली है, अच्छी मानी ये कर दिया और वो बन जाता है आपका की ख्वाहिश है मवाली इस तरीके का जो ये उसका थोड़ा लोग मेहमान के सामने ये नहीं तो बहुत ज्यादा शोहर और अक्सर नहीं होता है पार्शियलिटी जो यहाँ उसके नकल कर सारी जिद पूरी हो रही है, उसकी मर्जी का खाना बन रहा है, अम्मी जो है उसकी माने क्या कर रही है, दादा कह रहे उसको 10 में से 5 पॉइंट्स याद हुए तो आप रोल मॉडल एक अच्छी माने क्या किया, फितरत है सारी माने की ये उसका आइडियल मदर, लेकिन कुदरत का फैसला करो क्या हो बोलोगी देखो इंसानी समझ के बाहर हम बुद्धू नहीं है, ये अरिथमेटिक ये मैथमेटिक्स है इंसानी समझ के बाहर है, तुमको 5 पॉइंट्स भी याद नहीं हुए क्या आपका पहले ही लगे है तुमको 5 पॉइंट्स को पढ़ाई पे आमादा करेंगे और उस पर मेहनत करने एग्जाम से आप महीना पहले कदम उठाने वाले हैं तो तुमको 2 पॉइंट्स और याद हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? का बच्चा जो कमजोर है उसको बेहतर बनाने के लिए अगर आप एक कदम एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करेंगे ना तो 2 पॉइंट्स और याद हो जाएंगे, 10 कितने हो जाएंगे? 9, 10 में से 9 पॉइंट है पूरे मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए इंसानी समझ के बाहर है, बिल्कुल पॉसिबल। ये एक अच्छी मानी ये खाने मारता हुआ समंदर अल्लाह ताला की रहमत का इस तरीके का जो बच्चा दिया है इसको मैंने स्लो लर्नर बच्चा दिया, बहुत ज्यादा होशियार मेहनत से जो है वो बात जो होशियार है उसकी सारी जिद पूरी हो रही है, उसकी मर्जी का खाना खा रहा है, आपके बच्चे जो है उसको ही जरा प्यार कर रही है, कमजोर है, ये लर्नर उन जहन है क्योंकि ये 2 पॉइंट प्रोग्राम देने जा रहा हूँ, फिर 2 प्रोग्राम ये साथी है हर कुदरत का फैसला तरह समझ लीजिए क्या होगा, इंसानी समझ के बाहर दर्जे ये अरिथमेटिक ये मैथमेटिक्स करने की इंसानी समझ के बाहर है, सुन लीजिए और हर दर्जे सब करना पड़ेगा है, सबकी बातें सुनने पड़ेगी, पढ़ाई पे आमादा करेंगे और उसको मेहनत करने के तो बोलेंगे अगले एग्जाम एक कदम उठा के 62% मार्क्स मिले हैं, अगले एग्जाम आपकी फायदा बच्चा जो कमजोर है उसको बेहतर बनाने के लिए अगर आप एक कदम उठाते हैं बर्दाश्त करना पड़ेगा, रोने के हद में 10 कदम की आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 हर दर्जे मेहनत ये मैथमेटिक्स हर दर्जे सब समझ के बाहर गारंटीड है, ये हवाई बातें नहीं कर खाने मारता हुआ समंदर अल्लाह ताला की रहमत का इस साल से जो बच्चा दिया मैं जो इसको मैंने इस साल से बच्चा दिया था, मैं जो बच्चों को लिए मेहनत से जो कर रहा हूँ अपने आवाज नहीं आते इसके जरिए से उसे माँ बाप की बच्चे मुंबई में कमजोर है, मुंबई से स्लो लर्नर्स हैं, पर कुछ जहन है वहाँ बच्चे पेरेंट्स को इनको मैं 2 पॉइंट्स को लेकर आती है 2 नुकाती प्रोग्राम वो स्लो लर्नर बच्चे जिन पर लेबल लगाया था ये ना खा रहा है ना है रे वो कहां से कहां पहुंचे तो इस एक्सटेंट के टेक्निकल फील्ड के वो पहले जो है बीटेक एमटेक वहां तक और हर दर्जे सब बहुत सब करना पड़ेगा
एग्जाम में 65 तक मिलेंगे, उल्टा हो गया 58 मिले ना। अहम क्या कर रही है समता आप बर्दाश्त सुन रोने की हालत की आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मेहनत हर दर्जे मेहनत और हर दर्जे सब रिजल्ट गारंटी। हम बात कर रहे हैं हमारी बातें नहीं कर रहे यहाँ पर किस तरीके से लगभग 32 साल के अरसे से जो बच्चे कमजोर हैं, मैं जो उनके 32 साल के एक मामला और भी है, मैं जो बच्चों को गाइडेंस कर रहा हूँ अपने कॉलम के तरीके से लड़कियां पढ़ रही हैं, उसकी रोशनी में खूब पढ़ रही है। गाइडेंस मुंबई से लड़के नहीं पढ़ बरस से बेजोड़ रिश्तों की भट्टियां कब रही हमारे यहाँ लेके आती हैं। वो क्या है उस लोग बच्चे यहाँ से हम आवाज में लेबल लगाया था कि लड़के पढ़ने लगे हमारे माशरे से कहाँ पूछे कि टेक्निकल फील्ड के हाईएस्ट जो है बीटेक एंड नंबर 1 ये बेटों की पैदाइश किया जाता है, मिठाई बनाइटर दिया जाता है, उनको कई किस्म की फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की। यार भैया उनको यूटिलाइज अस्पताल में मैटरनिटी होम में, लेकिन ये नर्स यहाँ पे हो जो उस पे लेबल लगाया हुआ है, अरे बेटा हुआ है बेटा हुआ है, आप उनका बड़ा बड़ी पार्टी करो छोड़ दीजिए। ये मेहनत और सब हर दर्जे मेहनत और हर दर्जे सब रिजल्ट है गारंटी। हम बात कर रहे थे यहाँ पर किस तरीके से मामला जैसे बेटा किसी और की मर्जी से पैदा होने वाला कमजोर है, उनकी बेटी अब यहाँ पर एक मामला और भी है, बेटी हमारे मातम हो रहा है, बेटा हो तो शादियां नहीं बज रहे हैं, ये एटीट्यूड करे लड़कियां पढ़ रही, यहीं से उनका इंफॉर्मेशन खूब पढ़ रही और लड़के सीरियस लड़के नहीं पढ़ कि बेटों की पैदाइश पर बेजोड़ रिश्तों की भट्टियां कब रही हमारे यहाँ पर। नंबर 2 वो क्या है बेटों को लाठी समझना बंद, लड़के भी पढ़ने लगे हमारे संभालेगा नहीं अपने इसका आगाज माशरे का आगाज के लिए इसको दिया जाए। नंबर अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह देने वाला है कि बेटों की पैदाइश पर और जिसका पता डाले जा रही है वो क्या औलाद है देगा अल्लाह ने। क्या भैया एक अस्पताल में लाठी समझना बंद कर दो, नर्स ने आके उसके हर चीज उसके बर्दाश्त किया हुआ, अरे बेटा हुआ है खानदान के तरफ बड़ा आपका करो नंबर बड़ी पार्टी करो बड़ी ये नहीं है कि जो सख्ती आप अपनी बेटियों के साथ में करते हैं कि वही सख्ती आप अपनी बेटों की हुई है। बेटी से कैसा बोलते हैं, बेटी कहती है अपनी मर्जी, जरा मैं ये इससे बेटा किसी और की मर्जी से पैदा होने वाला, ठीक है 5 मिनट जाने में बेटी 5 मिनट आने में 2 मिनट बात करने में 12 मिनट में वापस आ शादियां नहीं बज रहे हैं तो बेचारी 12 मिनट में वापस कर दो। यहीं से उनका बेटा कहता है दोपहर के 3 बजे कहता है वो हिस्सा कहता है बेटों की पैदाइश पर मिठाई बाहर जा रहा हूँ, मैं शाम को 7 बजे आ जाऊँ, नंबर 9 बजे आ जाओ, 7 बजे का एक बेटों को बुढ़ापे की लाठी समझना, वो जो बुढ़ापे की लाठी के बेटों बाद में संभालेगा नहीं अपने को, बाद में अपने को ग्लोरीफाई करते हैं इसके लिए जो इसको अकेला अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रिज़्क़ देता है और फिर आपको रिज़्क़ देने वाला है। इसकी और जिसके हर चीज पर आप पता डाली जा रही है वो क्या औलाद रिज़्क़ देगा, आपको ग्लोरीफाई कर अल्लाह रिज़्क़ देगा। आप लाभ की लाठी समझना बनते उसके हर चीज पर पड़ोसियों से मालूम पड़ता है कि आपका बेटा जो है वो पूरा बिगड़ चुका है और नंबर का नहीं रहा है। 3 ये तब घर में मंडली जो सख्ती आप अपनी बेटियों के साथ में करते हैं वही सब बेटा हमारा बिगड़ गया बेटों के साथ। तो दुनिया में के हमारे जो लोग हैं बेटी के लिए अपनी वो मशवरा किताब से लेकर मशवरा से ठीक है, वो मशवरा 5 मिनट जाने में 5 मिनट आने में 2 मिनट बात करने में ताकि 12 मिनट में वापस आ जाओ तो 11 मिनट में वापस आ जाओ, ये मशवरा तो बेटा कहता है दोपहर के 3 बजे कहता है अब किसके साथ जाने के बाद शादी करते अम्मी जो लड़की वाला बाहर जाने मैं शाम को 7 बजे उसका अपने 9 बजे हो रहा है, एक बिगड़ी हुई गाड़ी के मैकेनिक के तौर पर हो रहा है। वो लड़की वालों को बताते नहीं अपने जो बिगड़ी हुई गाड़ी है ग्लोरीफाई तक के उसको ही
अरे जो तुम्हारी दादाजी आपके पास हो जाता है कोकटा के उसको कुछ नहीं कर सकते 4 दिन रहेगा वहीं पे आपसे पर क्या करेंगे इसकी यहाँ रहता है और ऐसे लट्ठू बेटों के माए जब दुल्हन देखने को निकलती है देखने के बाद बेटी तुम्हारे हाइट आप जब बाहर से अगर अपने बेटे की रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से मालूम पड़ता है कि आपका बेटा जो है वो भी बेटी ऐसे बेटों के नट्ठू किसी काम का नहीं रहा उनके लिए शादी.com घर में एक मंडली बनाई क्या है रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड बिगड़ गया है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल दुनिया देखे हुए हमारे एक्सट्रीमली बेवकूफ है उसका मशवरा ऐसे ही रैंडम मशवरा है वो मशवरा देना होता है बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आ गई इसकी शादी कर कितनी लड़कियां हमारे मोहल्ले से हमारी बस्ती से गैरों के साथ भाग गए वो तादाद मालूम करनी है अब किसके नसीब फोड़ने के लिए कितने लड़के इस लड़की वास्ता होता है देख कर ये उसका अपॉइंटमेंट कर पे आ गए किस एग्जैक्ट मैच को एग्जैक्ट एक बिगड़ी हुई गाड़ी के मैकेनिक के तौर पर हम ये कहते हैं कि लड़कों को कहना करना सही नहीं है गाड़ी जो है लेकिन ये भी क्या है अरे जो तुम्हारे दादा के लड़के जो है बेसिक एजुकेशन तक उसको कुछ नहीं कर सके इब्तिदाई तालीम से आप ऊपर क्या करें और जो और ऐसे लट्ठू के माए जब से भी दुल्हन देखने को क्या बनने वाले हो बेटी तुम्हारे क्या बनने वाले हो अरे अपने बेटे के लिए मांगना दाव का मामला हो रहा है अरे आप मातम कर रहे हैं अपनी बेटी ऐसे बैठे कर रही हैं उनके लिए शादी.com हमको सोचने का क्या है जो रिक्वायर्ड नंबर 1 एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल अगर बेटों का सबर बिठाएंगे एक्सट्रीमली बेवकूफ है उसका क्या तो उसके बाद इसी जो है वो मोहल्ले की लड़कियां बाहर जाएंगी जिसमें बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हमारे यहाँ की बेटी भी हो सकती कितनी लड़कियां हमारे मोहल्ले से हमारी बस्ती से गैरों के साथ भाग गई ये तादाद मालूम करनी है हम ये समझ कितने लड़के पैदा हुआ है स्कूल का बस्ता होता है 6 में 1 करोड़ जो है वो आपके घर पे आ गए और बेटे जाने वाली धन है तो उसके ऊपर कोई ये नहीं कर रहे वो पढ़ रहे हैं ये कैसे है कि दबाव क्या कहना नहीं करना सही नहीं है लड़कों का मामला ये भी क्या है वो मुकम्मल के लड़के जो है बेसिक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि इब्तिदाई तालीम से और जो रोजी रोटी से जुड़ने वाली तालीम है अब यहाँ पे माओ का किस्सा कहाँ पर आता है इस क्या बनने वाले होते बिगड़ने में सबसे बड़ा जो एक किस्सा आता है लड़कों के बढ़ने में वो ये मामला हो रहा है कुछ बीमारी हमारे समाज में माशरे में बातें कर रहे हैं इसका नाम है शॉर्टकट जब इंसान को सोचने का है खासतौर पर माओ ये हमारे से कितना आजाद करने में पट्टी जो वहां से लेकर केरला तक बेटों अगर बेम आ गई सब पे बिठाएंगे बाहर आ गए उसका उसके बाद में जो है वो मोहल्ले वो असर ये पैदा जाएंगी जिसमें बदकिस्मती से ये वहां पर हमारे स्कूल का बस्ता सब उठा कर सीधा दुबई सऊदी आने लगे क्योंकि सिस्टम सबके लिए वीजा करियर बन गया किसी भी चीज ये और उसका नतीजा क्या हुआ था सुन लीजिए ये समझ रहे हैं कि बेटा आज पैदा हुआ है 12 साल पहले सऊदी अरब गवर्नमेंट ने ऐलान किया 2 करोड़ रुपए का मक्का मस्जिद मदीना मुनव्वरा जाने वाली पूरे सऊदी अरब में उसके ऊपर मुसलमानों को रिवर्स पड़ रही जाएगी उसे दबाव क्या करना पड़ रहा है लड़कों का मामला है वो जानते हैं उसका अंजाम क्या होगा मुस्लिम लड़के मिलते थे गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए लेकिन कौन मिलते थे हेल्पर ड्राइवर अब यहाँ पर माओ का किस्सा कहाँ पर आता है उस चूल्हे का ईंधन अपने बेटे को क्यों बना रहा है जो एक किस्सा आता है माँ ने अपने बेटों को ये है घर के चूल्हे का कुछ बीमारी हमारे समाज में माशरे में लगी हुई है इस वजह से हमारे बेटे जो हैं वो बढ़ रही है और ये हमारे तवाज़ुन जो बिगड़ रहा है समाज का केरला किसी वजह से गल्फ कंट्रीज में जो बूम आ गई बहुत जल्दी से बाहर आ गई यहाँ उसका बड़ा असर वहां पर लगा और वो असर ये पैदा हुआ मेजर प्रॉब्लम जो है वहां पर जो है वो स्कूल का बस्ता सब उठा के सीधा दुबई सऊदी जाने लगे लेक्चर जो है वो कम से कम वीजा करियर बन गया किसी भी सवा घंटे में समय और उसका नतीजा क्या हुआ था दलील बहुत तेज आ आज इशू हमारा 12 साल पहले और वो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है
कि सिर्फ मक्का मस्जिद मदीना हमारे घरों में पूरे सऊदी अरब में सिर्फ मुसलमानी तंगी रही है, उस वजह से हम अपने छोटे मोटे कामों वल्ले मुस्लिम जानते हैं तैयार नहीं। मुस्लिम लड़के मिलते थे गल्फ कंट्री से काम करने के लिए, लेकिन कौन मिलते थे? अक्सर हेल्पर ड्राइवर नंबर जो हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप हर साल दी जाती है। आपके मालेगांव के बच्चे भी कई सारे आते हैं जो हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। उस स्कॉलरशिप में जो क्राइटेरिया होता है हमारा कि उनके घर की कंडीशन क्या है वगैरह वगैरह सब हम देखा जाता है। और तब मुझे ऐसा होता है कि वाकई घर हमारे यहाँ पर जो है वो बड़ी तंगी है, बड़ा मामला है। तो वहां पर कुछ माएँ अपने बच्चों के लिए कल सुबह 11 बजे तक पैसा भरने का है, 70,000 रुपए तक भरने का है, तो एडमिशन देने, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूँ बड़े अदब से, क्या ये बच्चा कल रात में पैदा हुआ, 18 साल पहले पैदा हुआ, तो 18 साल पहले आपका एटीट्यूड क्या था? आपने उसके लिए क्या इकदाम किए थे? करना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए? हमारे यहाँ पर मुस्लिम सोसाइटी में, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम सोसाइटी में बचत का कोई तस्वुर नहीं है। बचत हाँ करेंगे, बचत एकदम एक बार हमें ना 10 लाख बचाएंगे, 15 लाख रुपए बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? बचत का तस्वुर ही गलत है। कहां से चप्पल पड़ने वाली है 10 लाख की? उसके लिए ये इनिशिएटिव माओ ने लिया। तो उसमें क्या करना है? उसमें करना क्या है? उसमें करना ये है, एक ही तरीका है, दूसरा तीसरा कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। और तरीका ये है कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उतने मनी बॉक्स लगाए, गल्ला लगाए पैसे, और हर बच्चे के लिए पैदा होते ही भाई ये रफीक का है, शफीक का है, ये आसिमा का है, साइमा का है वगैरह, और रोज उसमें 5 रुपए डाले तालीम के लिए, रोज 5 रुपए। मैं जब ये कहा तो एक जज से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपके सवालात जो भी हैं वो वॉलेंटियर्स जमा करें सवालात। अब मेरे बात खत्म होती है, मैं सवालात की जवाब दूंगा। तो एक माँ ने मुझसे कहा कि क्या सर क्या बात कर रहे हैं, रोज के 5 रुपए हम कहां से लाएंगे? बोला उसका एक ही तरीका है, रोज के 5 रुपए, इसका मतलब ये होता है कि रोज एक रोटी कम खाती है, एक रोटी 5 रुपए की आती है, तो एक रोटी कम खाने की तो 5 रुपए की बचत होगी। वो माँ कहती है लेकिन सर मेरे तो 4 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि 4 रोटी कम खाइए। बाप रे, 4 रोटी कम खाओ, अरे मैं भूखी रहूं? सुन लीजिए, सुन लीजिए, मुझे उस माँ ने क्या सवाल पूछी कि क्या मैं 4 रोटी कम खाऊं यानी मैं भूखी रहूं? सुन लीजिए, हम हर छोटी बड़ी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की कोशिश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ पे सोते थे, हम भी दाहिने हाथ पे सोते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता ऐसे बात किया करते थे लोगों से, हम आहिस्ता ऐसे बात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते वक्त सामने का खाना, इतनी जो सुन्नतें हैं, हर सुन्नत पे हम अमल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि कब हम अपने पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत अदा करें? कब अदा करें? वो भी तो सुन्नत थी, सुन्नत नबवी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांधा था भूख की वजह से। वो वक्त आ गया अपने बच्चों की तालीम की, आला तालीम की, उनको तालीम से आरास्ता करने की, उसको उन लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, खुद मुख्तार बनाने के लिए, उसके लिए पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत अदा करने का वक्त आ गया है। हमको करना है। 4 रोटी कम खाओ, यस,
चार रोटी कम खाएंगे। कामयाबी जिस सिक्के का एक रुख है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है कुर्बानी। हम कामयाबी चाहते हैं लेकिन कुर्बानी देने को नहीं चाहते। सुन लीजिए, मैंने यहां तक लिखा था अपने ब्लॉग में, अपने कॉलम में, अपने आर्टिकल में, और वो ये है, यहां तक मैंने उसमें लिखा था कि अगर आपके बच्चों की फीस के लिए जरूरत पड़े तो आप जुम्मा की नमाज के बाद चादर फैलाकर उसमें मार्कशीट रखिए और कहीं आवाज लगाइए, मदद करो भाई, मेरा बच्चा घर में बैठ जाएगा, उसका एडमिशन नहीं हो जाएगा, वो घर में बैठा रहेगा, बेकार बैठा रहेगा भाई, आवाज लगाइए। कोई आयत नहीं उसको भीख मांगी। तालीम से आगाज करने के लिए अपने जरूरत पड़े जुम्मा की नमाज के बाद चादर फैलाकर उसमें मार्कशीट रखिए और पैसे जमा कीजिए। वक्त आ गया कि कुर्बानी उनको करनी है, उनको देनी है। हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या हमको कुर्बानी और कैसे ही करनी है। हम जो गर्ल्स स्कूल्स होते हैं जहां से लड़कियां पढ़ती हैं, ऐसे कई स्कूल हैं जहां हजारों लड़कियां पढ़ी, उनकी तरबियत में मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि माँ किसे कहते हैं, माँ की डेफिनेशन की, माँ किसे कहते हैं, माँ की डेफिनेशन है। बच्चे जवाब नहीं दे पाते। तो बताओ, आप मुस्तबिल की माएँ हैं, बच्चों से पूछता हूं, जरा जवाब दीजिए कि माँ किसे कहते हैं, माँ की डेफिनेशन क्या है। जो रोज सुबह गर्म रोटी बना के देती हो माँ, तो जो मांगेंगे वो गुड़िया खरीद के देगी वो माँ, जो हर ख्वाहिश हमारी पूरी करती है वो माँ। माँ की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, इसलिए कि ये माँ को बनते हैं। बच्चों से मैं कहता हूं कि माँ किसे कहते हैं, सुन लीजिए। जो नम आंखों के साथ, जो भीगी हुई आंखों के साथ अल्लाह से बातें करती है, वो माँ होगी। बच्चियों को माँ का मतलब मालूम होना चाहिए। भीगी हुई आंखों के साथ जाए नमाज पर बैठकर बराह रास्त डायरेक्ट जो अल्लाह से बातें करती है उसे माँ कहते, वो माँ होगी। और उसे भी कहता हूं मैं कि सुनो बच्चियों, सुनो कि अल्लाह ताला आपकी माओ की वो बातें, बराह रास्त डायरेक्ट बातें सुनता है। एक बात ये भी सुनो बच्चियों, उनसे मैं कहता हूं, एक बात ये भी सुन लो कि वो आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से इसलिए बातें करती हैं, तो आंखों में आंसू क्यों रहते उसके, ताकि आप बच्चों के आंखों में कभी आंसू ना आ जाए। वो मां, उसे मां कहते हैं। ये जज्बा आप में से हर मां में आना चाहिए, होना चाहिए। बहुत सारी बातें वक्त की कमी की बिना पर मैं इसमें से नहीं, लेकिन एक बात जिसको हमने कहा था, दो अहम मौजू अभी आ रहे हैं जल्दी से। तो नंबर एक ये है कि माओं को शिकायत की अपने बच्चों से। नंबर एक कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं। नंबर दो, बच्चे खासकर लड़के घर से बाहर जाते हैं। नंबर तीन, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं। एक जवाब सुन लीजिए। पहली बात, नंबर एक, जिस वॉलंटियर्स के बाद सवाल तैयार हैं वो सब और जमा करने सवाल कुछ हैं तो हम जल्दी इसका जवाब देंगे। हमारे बच्चे जो हमारी बातें सुनते नहीं हैं उसकी दो वजह। पहली वजह ये कि हमने दीन की तालीम को यसर कुरान तक महदूद रखा। कुरान पढ़ने आ गया तो टोपी नहीं कर, तालीम मुकम्मल होगी।
پھر قرآن کی تعلیمات کو اس کی گھٹی میں ہم نے پھیلایا نہیں. ہماری یہ جو تعلیمات ہیں قرآن کی، ایک ہی ایسا دین فطرت ہے جس کی تعلیمات خالی قبر میں کام نہیں آئیں گی، آگے جنت کا ذریعہ نہیں بنے گی، دنیا کی ہر چیز کے لیے وہ تعلیمات ایسنشیل ہے، ضروری ہے. تو وہ دین کی تعلیمات کو ہم نے ان کی گھٹی میں پلایا نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. اور دوسری وجہ یہ ہے اور بڑی اہم وجہ کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد، ہمارے قول اور فعل میں تضاد. ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہم بچوں سچ بولو، جھوٹ بولو، سچ بولو، تو بچے سے کام کیا کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے امی جو ہیں وہ پڑوسن کے ساتھ کتنے بار جھوٹ بولتی رہتی. اس کے بعد ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری باتیں سنیں گے نہیں. قول اور فعل میں یکسانیت آسان بات نہیں، غالباً فرشتوں کا وصف ہے. لیکن آپ اور ہم میں ہر ایک کے لیے ممکن ہے کہ ہماری قول اور فعل میں بہت حد تک یکسانیت ہو. ایسا ہے کہ قول مشرق اور فعل مغرب کا. یہ مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہیں ہمارے بچے ہم کو. بچے کو بچہ مت سمجھیے، اور آج کل کے بچوں کو تو بالکل بچہ مت سمجھیے. ہم جو بچے تھے وہ بچے تھے. آج کل کے بچے کون سے ہیں؟ 4G اور 5G بچے ہیں. ان کو بچہ مت سمجھیے. یہ بہت ہی مائنیوٹلی آبزرو کرنے والے ہمارے ہر حرکت کو، ہمارے ہر قول کو، ہمارے ہر فعل کو، ان کو بچہ مت سمجھیے. وہ بچے جو ہیں وہ آبزرو کرتے رہتے ہیں. ہمارے قول اور فعل میں تضاد اگر رہا تو ہماری بات کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو ہمارے بچے جو بات سنتے ہیں اس کی وجہ بچے خاص طور پر لڑکے باہر جاتے ہیں. کیوں؟ کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کھڑکی اس وقت کھولتا ہے جب اس کا گھر میں گھٹن محسوس ہوا. اور نمبر 3 یہ کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں، لڑکے خاص طور پر، یا ایون لڑکیاں بھی اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں. کہ آپ جو شکایت کر رہے ہیں نا، اس شکایت بھرے سوال میں ہی جواب چھپا ہو. کہ آپ کے بچے اگر آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں، تو I repeat کہ آپ کے بچے جو ہیں، آپ کے بچے اگر آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، اپنے دوستوں کی بات سنتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیں. جو باتیں وہ ناکے نکڑ پر اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، وہ ساری باتیں وہ آپ سے کریں. ہر موضوع پر بیٹا اپنے باپ سے اور ماں سے، اپنی بیٹی جو ہے اپنی ماں سے یہ باتیں جو ہر موضوع پر کر سکتے ہیں. باہر بھی جانا پڑے اس کو. ہمارے ہوتا کیا ہے، بچہ بستہ دبائے اسکول سے گھر پہ آیا، امی کیا سامنے اس کا ابا اسکول میں کیا ہوا. ابا بولتے ہیں بھائی تمہاری امی بیکار بیٹھی ہے. جاؤ. سارے مرد یہ سمجھتے کیا ہوتے بیکار بیٹھی. جاؤ امی اسکول میں کیا ہوا. صبح سے ڈائٹ نہیں ہے، میرا مکسر چل رہا ہے، میرا کھانا نہیں ہوا ہے. ابا سننے کو تیار نہیں. امی اس کے بعد کیا ہوگی؟ بات بہت معمولی ہوگی. کیا ہمارے اسکول کے سامنے سے ادھر سے ایک ٹرک آئے، ادھر سے ایک گاڑی آئی، بیچ میں سے ایک سائیکل والا گیا، ایک معمولی بات ہوگی. لیکن وہ اس کا بچپن ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنی بچپن کی یادوں کا آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہے. لیکن امی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ابا کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہاں پر جو نکڑ پر ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جس کے پاس آپ کے بچے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کانٹریکٹ لیا ہے، ٹھیکہ لیا ہے. کس بات کا ٹھیکہ لیا ہے؟ آپ کے بچے کو بگاڑنے کا ٹھیکہ لیا. بولے یار تمہارا ابا مجھے ٹائم نہیں آؤ، میرے گلے ملو، ہم سے سناؤ، تمہاری بپتا سناؤ، ہم تمہارے ہر دکھ درد کو سننے کو تیار ہیں. پھر اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس جاتا ہے. پھر آپ رہ جاتے ہیں ماں باپ، اور وہ جو نکڑ پہ کھڑا ہے وہ بن جاتا ہے ان لوگوں کا مائی باپ.
फिर वो माँ बाप की बातें नहीं सुनता है, अपने माई बाप की बात सुनता है। किसी को माई बाप बनने ही ना दो। हम बात कर रहे थे कि क्या रोल है आपका, जो बेहतरीन चीज आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, वो है वक्त देना पड़ेगा। आखिरी बात में आज के अपने सवाल लूंगा, सवाल जिसके पास नहीं है जमा कर ले। पहला सवाल ये है, नहीं एक मिनट, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी हैं, आपको जल्दी जल्दी क्रिएट समेटने की आदत हो जाती है ना, जल्दी से बेल मारने की और निकल जाने का, ऐसा है। लेकिन ये बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई। जो मौजू अभी बाकी है वो है मोबाइल। उससे हम कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को। कोविड की वजह से ये आ गई, हमने बच्चों के हाथ में दे दिया, और बड़े संभाल के इस्तेमाल करो। हम न्यूट्रॉन बॉम्ब, एटम बॉम्ब उसके हाथ में दे रहे, थोड़े संभाल के इस्तेमाल करो, तो गांव में फटेगा। अब सुन लीजिए ये क्या है। ये जो मोबाइल है, इसकी ये आगे की हर चीज, हर टेक्नोलॉजी हमेशा एक चैलेंज है, हमेशा चैलेंज है। इसके पहले जो है वो फिल्में आई थी, बच्चे जो है फिल्मों के बड़े शौकीन हो गए। फिर टीवी आ गया, फिर टीवी पे सीरियल्स आ गए, फिर उसके बाद में जो है वो कई प्राइवेट चैनल्स आ गए, फिर उसके बाद जो है वो केबल टीवी आ गई, ये आ गया। ये हमेशा की जो है ये चैलेंजेस होती है। अब जो है वो आ गया है ये मोबाइल, सबसे बड़ा है। जो सबसे ताकतवर चीज होती है वो सबसे खतरनाक चीज होती है, ये भी याद रखो। एक चीज, कोई चीज को काटने के लिए हम छोटी छुरी इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज को, चाकू कर सकते हैं, कर सकते हैं। उससे बड़ी कुल्हाड़ी होती है, उससे बड़ी जो है वो पिस्तौल होती है, राइफल होती है, और फिर बम होता है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा स्पीड वाले, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रफ्तार से, उससे भी ज्यादा रफ्तार से चलने वाली चीज जो है ये मोबाइल की। इसका फायदा भी है, आज हायर स्टडीज में ये काम आएगा आगे चलकर। इसमें हजारों किताबें नहीं, हजारों लाइब्रेरियां इसके अंदर मौजूद। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाने के लिए आपको जाना नहीं पड़ता, क्लासिफाइड की भी लाखों किताबें वहां पर महफूज हैं, उनका आप इस्तेफादा कर सकते हैं। ऑनलाइन से आपने देखा कि कोविड के वक्त में उससे पढ़ाई भी आपके बच्चों की है, बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं। एक मैं नाम लेना चाहूंगा, टेलीग्राम एक ऐसा एक ये है ऐप है, क्या उस पर कई स्टूडेंट हायर स्टडीज वाले को शेयर करते रहते हैं अपने नोट्स को वगैरह, वो उनके लिए फायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा मेडिसिन में, सर्जरी में, सर्जरी में, इन सब में भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। लेकिन हम हमेशा, एक इंसानी फितरत ऐसी है कि उसका जो बुरा इस्तेमाल है उसी में लगे रहते। और बुरा इस्तेमाल कहां से शुरू होता है? नंबर एक ये कि रोज रात को सबको एक काम मिल गया हमारे नौजवानों को देखने के लिए कि कौन कौन ऑनलाइन है। अरे ये रफीक भी ऑनलाइन है, शफीक भी ऑनलाइन है, दोनों ऑनलाइन है। अरे बाप रे, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और मेरे खिलाफ ही बात कर रहे होंगे। बदगुमानियां बढ़ गई। क्यों? अरे देखो, मेरा मैसेज जाने के बाद 3 बार ऑनलाइन आया, लेकिन अभी तक मेरा मैसेज उसने पढ़ा नहीं है। ये कीमत है मेरे मैसेज की, मैं उसको अभी से ब्लॉक कर देता हूं। कैसे कैसे ही हो रही? रिश्ते कायम कर रहे हैं हमारे बच्चे बाहर, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनको हम जानते नहीं है, उनके साथ ताल्लुक जो है वो पैदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चौपाल बन रहे हैं, कई बड़े नाके नुक्कड़ होते थे और कई लोग बैठते थे उसमें, कई किस्म के लोग जो हैं वो बैठते थे वहां पर डिस्कशन करने के लिए, सर्वे करने के लिए। अब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चौपाल हो गए हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह सब। अब वहां पर हमारे नौजवान शरीक हो रहे हैं। कैसे, किस स्टाइल में, जरा सुन लीजिए। मैंने 1 घंटे तक देखा
ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, 1 घंटे तक मैं तमाशा देखते बैठा। फिर 1 घंटे के बाद मैं मैदान में उतरा, मुझे शहंशाह अकबर मैदान में उतरे, मैं मैदान में उतरा और फिर 1 सेंटेंस लिखा, 1 जुमला लिखा, सबकी बोलती बंद। टाइम कितना गया? 1 घंटा लोगों के अंदर क्या क्या चला हुआ है वो ऑब्जर्व करने की, और फिर 1 जुमला लिखते ही सबकी बोलती जब बंद हो गई तो उस पर झूमने में 1 घंटा और गए, 2 घंटे। इसमें होता क्या है? अब कसम खा के आप बोलते कि नहीं, खाली 5 मिनट खाली देखते हैं और 1 घंटे से पहले आप बाहर आते नहीं। तो टाइम वेस्टिंग का ये बड़ा जरिया जो है वो बन गया है कि कितने इसमें नुकसान होते हैं। फिजिकल नुकसान क्या है इसके अंदर? कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, आंखों का दर्द, ये फिजिकल नुकसान इसमें हुए। साइबर बीमारियां अब शुरू हो जाएंगी टू दिस एक्सटेंट, क्या साइबर मेडिसिन के डॉक्टर्स पैदा हो जाएंगे। एमडी कहने दिया है कि साइबर मेडिसिन, ये साइबर से इलेक्ट्रॉनिक इस मीडिया से जो बीमारियां पैदा हुई हैं उसका इलाज करने वाला ये वाहिद डॉक्टर। बच्चे जो हैं पहले आते हैं एंजाइटी, बेकरार, वहां से आगे की स्टेप जो है वो आते हैं वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बेचैनी वाली करती है बिल्कुल, और फिर उससे ज्यादा वर्स्ट बीमारी को उनको घेर लेती है जिसका कोई इलाज नहीं है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, काफी तरक्की कर ली, हर चीज का मिसाइल बनाए, सैटेलाइट बनाए, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट बना नहीं है। उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। हमारे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे। जब डिप्रेशन में बच्चा आता है, मायूस रहता है, वो होता है कि हवा कोई सडन नहीं होता, पहली बार उसमें तब्दीली बदतदरीज जाती है और उसको आपको हमेशा मॉनिटर करने का, अब उन्हें मॉनिटर करने का, इसके दोस्त कौन ये देखने का, ये सब करने का। तो इज पेरेंटिंग इज अ फुल टाइम जॉब? यस, इट इज अ फुल टाइम जॉब। उसको पार्ट टाइम मत बनाए, फुल टाइम जॉब है पेरेंटिंग। तो उसमें वो आते हैं कि और कोई सदन नहीं, बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है, बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है, अलग थलग रहता है, घर में जाते ही फौरन लाइट लगा देता है, कमरे की लाइट बंद कर देता है, अकेला रहता है, साथ में खाना खाने को तैयार नहीं रहता है, बहुत कम खा रहा है, बहुत ज्यादा खा रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, अपने दिल की कोई बात नहीं कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये चेंजेस आ रही हैं, वो डिप्रेशन का शिकार। देखिए आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट क्या देते हैं उनको? साइकियाट्रिस्ट क्या देते हैं उनको? स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां देते, नींद की गोलियां देते। क्यों दे? देखो हो गया ना, इलाज हुआ ना, हमें सोया रहता है, वो जब तक गोली का असर है सोया रहेगा, फिर रात को 12 बजे फिर अम्मी फोन करती है कि डॉक्टर अभी बेटा मेरा फिर से वायलेंट हो गया, अच्छा इसको 1 गोली और दे दो। 3 बजे फिर माँ फोन करती है, डॉक्टर मेरा बेटा और वायलेंट हुआ, हंगामा कर रहा है, उसको 1 गोली और दे दो। नींद की गोलियां दिन में 3 बार, उसके बाद 1 महीने में उसका इलाज हो जाता है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर मालूम है? किस कीमत पर? कि वो 1 महीने के बाद उसका बोलते हैं अच्छा हो गए, अच्छे हो गए, मुझे क्या हुआ? लेकिन वो एग्जाम में फिर कौन सी एग्जाम में, कॉलेज में कौन सी कॉलेज, उसकी याददाश्त कम हो गई है, वो नींद की गोलियां खा रहा थी। डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। साइबर मेडिसिन अब कायम हो जाएंगी। इससे पहले हमको हमारे घरों को ऑर्डर में कैसे लाने का है। नंबर 1 क्या करने का? नंबर 1 हमको एक अनलॉक सोसाइटी कायम करनी है। अनलॉक सोसाइटी यानी पेरेंट्स अपने मोबाइल को लॉक न रखें, तब हमको हक पहुंचता है हम अपने बच्चों को कहें कि अपना मोबाइल ओपन रखो, उसको लॉक मत करो, ताकि पेरेंट्स किस किस साइट्स पे जा रहे हैं वो बच्चों को मालूम हो, बच्चे किस साइट पे जा रहे हैं वो वालिदैन को मालूम, और बच्चों को मालूम है
पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है अक्सर कि किसी साइट्स पे गए गलत सलत फिर डिलीट कर दिए, डिलीट नहीं होता है, वो बच्चे आपके ट्रेस कर सकते, बहुत आसान है। मोबाइल प्रोवाइडर को जो है सर्विस प्रोवाइडर वाले आप उनको उनका पेमेंट देंगे 100 रुपया 200 रुपया, किसकी साइट पे गए थे गलत सलत सब मालूम होता है। अनलॉक सोसाइटी हमको कायम करनी है। माँ बाप अपने मोबाइल को जो है वो लॉक न रखें, हमको तब हक पहुंचता है अगर बच्चों को ये कहने का कि उसे लॉक न रखो। ये पहला काम होगा। नंबर 2, एक्ट्स जो है कौन से रखने के, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से माँ बाप बच्चे भाई बहन ये रखने का, अम्मी ये रखने का, अब्बा ये भी रखने का, कॉमन तो रखें। जो भी डेंजरस एप्स हैं उनको उसमें से निकाल दो, उनको ये करने का। कुछ अभी इस वक्त फौरन आप क्योंकि इनकी आदत पड़ चुकी है 2-2.5 साल में, इसलिए फौरन उससे आप उनको हटा नहीं सकते। इसलिए फिलहाल मैं 1 साल की बात कर रहा हूं, मैं 1 साल के लिए आपको एक मोबाइल और मोबाइल का घंटा, एक पीरियड मोबाइल का घर में क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें अम्मी अब्बा बच्चे जो हैं वो 1 घंटा साथ में बैठकर जो है वो मोबाइल देखेंगे। उनमें जो भी एंटरटेनमेंट की कोई चीज है या कुछ है वो मोबाइल और ये क्रिएट करना पड़ेगा 1 साल के। लेकिन हम उससे बिल्कुल कि जो स्क्रीन सेवी हो चुका है उसके लिए हम उसको फौरन उससे दूर नहीं कर सकते। मोबाइल देखने के ताल्लुक से जो भी रूल्स बनते हैं उसको न माँ बाप तोड़ेंगे न बच्चे तोड़ेंगे। ये मोटे तौर पर हमको करने का है। अभी ये आ जाएगा, यकीनन आ जाएगा, बात खराबी बीसीआर, लेकिन आज 100 साल से बात फैली हुई है और साबित हो चुकी है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, खासतौर पर मुंह का कैंसर होता है। तो सिगरेट के पैकेट पर एक एवरेज सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सिगरेट बनाने वाले इतना बारीक लिखते थे कि अच्छा ये सिगरेट पीने वाले सब जाहिल लोग रहते हैं, उनको जो है वो लिखने में क्या फर्क पड़ता है। कई सालों की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार वो सिगरेट कंपनी वालों से दुश्मनी मोल कर जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर अब जो इंतहाई किस्म का वर्स्ट किस्म का जो मुंह का कैंसर हुआ है उसका फोटो छापा है। यही होने वाला है मोबाइल। ये मोबाइल पैक जो पैकेट रहता है या मोबाइल की जो स्क्रीन जैसे ऑन करते हैं वहां पर वो आना चाहिए कि इसका मोबाइल देख देख कर जो एडिक्शन हुआ था उसको और जो पागल हो चुके हैं उनके फोटो, लाइव फोटो उनके पहले आ जाए फिर मोबाइल खुल जाए। ये होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्डर देगी। ये करने से पहले हमको ये एक तंजीम घर में किस तरीके से हमको पैदा करनी है कि वो हमको एक आखिरी बात इस ताल्लुक से, बस मैं सवाल में आ रहा हूँ, तो आखिरी बात इस ताल्लुक से ये है और वो ये है मोबाइल के ताल्लुक से बच्चे लोग थोड़ा बैठे आराम से। आखिरी बात आपको समझने की ये है कि आप सबसे ज्यादा डेंजरस जो है मोबाइल में जो वीडियो गेम्स जो बच्चे लगे रहते हैं उसको, लेकिन उसके लिए उनको डांट डपट ये वो सब बाद में। क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा कि बच्चों को आप डांट डपट क्यों कर रहे हैं, उनको डांटे क्यों खिला रहे हैं, उनको खाली रोल मॉडल बन जाओ, आपको कॉपी करना ही हो। आखिरी बात इस ताल्लुक से जो आती है इस मोबाइल के ताल्लुक से कि उनको कि वो जो खास जो गेम्स है बहुत डेंजर उसमें जाते हैं उसको थोड़ा स्टडी कर लो। जब बच्चे आपके आगे आगे जाते हैं तो मोबाइल में से आवाज क्या आती है, गौर कीजिए इसमें, वेरी गुड, एक्सेलेंट, परफेक्ट, ऑसम, क्या बात है, जबरदस्त। ये मोबाइल में से कौन जिसका हमारा कुछ ताल्लुक नहीं, आपके बच्चे कुछ ताल्लुक नहीं, वो जवाब देता है।
वालिदैन जरा गौर कीजिए कि आपका बच्चा जब अच्छा रिजल्ट लेके आता है तो कितनी बार आप बोलते हैं वेरी गुड, ऑसम, एक्सेलेंट, कितनी बार आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार उसको एनकरेज करते हैं? ये सोचने की बात। आज के मेरे इस लेक्चर का मैं यहाँ पर सवाल के जवाब शुरू होने से पहले आप जरा याद कर लीजिए, यहाँ उठने से पहले याद कर लीजिए कि कब आपने अपने बच्चे को गले लगाया था, कब अपने बच्चे के अपने सर पे हाथ रखा था, कब? जादू है, जादू, मैजिक है। जब माँ बाप अपने बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं और उसे गले लगाते हैं तो एक मैजिक जो है वो तैयार हो जाता है। मैजिक मुझे आज मैं समझूंगा मेरा लेक्चर कामयाब रहा। घर पे जाकर अब अपने बच्चे को गले लगा, कितना ही बड़ा बच्चा, मैं क्या बात है अम्मी, ईद न बकर ईद क्यों गले मिल रहे हैं? बोले गले इस सर पे हाथ फेरे। इससे पहले कि कोई वो माई बाप उसके सर पे हाथ फेरे, उसके पहले कि वो वीडियो गेम्स के अंदर बैठा हुआ कोई आदमी ऑसम, वेरी गुड, एक्सेलेंट आपके बच्चे को जो है वो एनकरेज करे, प्रोत्साहन करे, उसकी हौसला अफजाई करे। आपका बच्चा जो है आपका बच्चा है। सवाल का सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल पहला सवाल ये है कि मेरे घर में, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि मेरे घर में मेरे शौहर, किसी का नाम मत पढ़िए, किसी का नाम मत पढ़िए। हाँ ठीक। मेरे घर में मेरे सास और शौहर जो है हमेशा मेरे बच्चे को ये ताकीद करते हैं, बल्कि मुझको खुद ये इंसिस्ट करते हैं कि आज रहने के स्कूल मत जा, मदरसा चलेगा। इसी तरीके से महीने के 30 दिन में 10 दिन बच्चा स्कूल जाता है और पूरे के पूरे 30 दिन मदरसा जाता है, तो वो मदरसे में अव्वल दर्जे पे है और स्कूल में पूरा नहीं। तो क्या उसके लिए क्या? तो उसको कैसे हम जो है बराबरी करें स्कूल की पढ़ाई और मदरसे की पढ़ाई में? नहीं, ये जो है ना, इसमें टीचर्स एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। ऐसे बच्चे ऐसे यहाँ पर जहाँ पर माहौल बिल्कुल पढ़ाई का नहीं है, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कीजिए, वहां पर टीचर्स जाएं और उनकी काउंसलिंग करें। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है इसमें कई सारी कमियां खामियां हैं, उसमें दो राय नहीं है। हम इसके ताल्लुक से कई सेशन टीचरों के ताल्लुक से अभी रखने वाले हैं। मेरा YouTube चैनल जो अभी यहाँ पर इसका शुरू भी हुआ, कापड़ी स्पीक्स के नाम से, उसका बाद में आपको दिया जाएगा। आप उसको उसमें मुसलसिल नई टॉपिक्स पर जो कहीं पर गूगल पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे अपने क्रिएट किए टॉपिक्स हैं, उस पर बातें होंगी, तो उसमें हम एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी एक पॉजिटिव, अगर वाकई उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एक बात ऐसे आ रही है कि एवरी टीचर हैज टू बी ए काउंसलर। हर टीचर को काउंसलिंग करना ही आना चाहिए। काउंसलिंग एक सब्जेक्ट हो जाएगा टू दिस एक्सटेंट कि हो सकता है कि बीएड में भी काउंसलिंग जो है, एजुकेशनल काउंसलिंग, ये बहुत ही वाज़ेह तौर पर दिया जाए। तो इसके लिए टीचरों को उन घरों में जाकर जहाँ पर माँ या बाप दोनों में से किसी एक के वजह से जो मामला बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए काउंसलर, जो टीचर जो काउंसलर भी हैं, उनको रोल अदा कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको कौन सी पढ़ाई को तरजीह देना है, मदरसे की या स्कूल? किसकी? हमको कौन से पढ़ाई को तरजीह देना है, मदरसे की या स्कूल? मगरबियत की, मदरसे की या स्कूल की। देखिए, मदरसा के बच्चे भी कामयाब हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जिन मदरसों की जो मुंतजिमीन हैं पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, वहीं से अच्छी उम्मीदें आ रही हैं। वो बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आर्किटेक्ट बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, सभी हो रहे हैं। लेकिन अक्सर मदरसों में एटीट्यूड वो नहीं रहता है पॉजिटिव। तो उस ताल्लुक से ये असरी तालीम यानी कोई गैर तालीम नहीं है। तालीम होती है, उसको ये असरी तालीम और दीनी तालीम जो है उसमें आपको बांटना गलत हो जाता है। इल्म नाफे
की बात कही गई है कुरान में, और उसी की ताल्लुक से हमको सोचना है, क्योंकि हम असली तालीम जो है, जिसको हम कहते हैं भाई ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस पर आप लाहौल पढ़े नहीं पढ़ सकते। क्यों? कि हम सबसे पहले दावा करते हैं कि सबसे पहले कुरान ने बताया ये जमीन कैसे बने, आसमान कैसे बने, है ना। पहले समय का फरुखियत, पहले जिबाले का फरुखियत, पहले अर्द का फरुखियत, और अर्जियात या जियोलॉजी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। सबसे पहले कुरान ने बताया, सबसे पहले कुरान ने बताया कि हमने ऐसे समंदर पैदा किया, एक तरफ खारा पानी, एक तरफ मीठा पानी, बीच में कोई दीवार नहीं है। और सूरह फुरकान में ये बात जो सबसे पहले बताई गई वो ओशियोग्राफी अभी 200 साल पहले से साबित कर दी। सबसे पहले कुरान ने बताया कि सूरह ज़ुमर में, सूरह 39 आयत नंबर 6 में, कि मां के बतन में बच्चे की परवरिश कैसी होती है, और एम्ब्रॉयडरी सिर्फ 200 साल पुराना इल्म है। जब कहते हैं कि सारा इल्म हमारे कुरान से महफूज है, तो हमको इस पर लाहौल नहीं पढ़ने का है। लेकिन ये इसलिए असली तालीम, नई तालीम, ये ऐसा कुछ ये होता नहीं है। दीन की रोशनी में हमको तमाम तक जो है वो तालीम हासिल करनी है, दीन की रोशनी में, कि बच्चों को पढ़ाएं 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 पढ़ाएं। जहाँ पे डार्विन की थ्योरी आ जाए, हम पे रुक जाए, तो बच्चों से बच्चों हम बंदर की औलाद नहीं, तो साइंस से कि हम बंदर की औलाद हैं, क्योंकि साइंस ने अभी उतनी तरक्की नहीं की है जितना तरक्की याफ्ता कुरान। खूब दुआएं दीजिए, साइंस खूब तरक्की करेगी, लेकिन कुरान सबसे अजीम है। दीन की रोशनी में तमाम तक उलूम हमको हासिल करना। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मेरी बच्ची IAS ऑफिसर बनना चाहती है, इसको अभी से कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए? IAS ऑफिसर बनने का, यूपीएससी का एग्जाम देकर वो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन सकती है। यूपीएससी का एग्जाम हर ग्रेजुएट दे सकता है। 12वीं के बाद उसकी तैयारी शुरू कर दी। 12वीं के बाद कई सारे कोचिंग हैं जहाँ पर मुफ्त में कोचिंग होती है। बम्बई में हज हाउस में है, दिल्ली में हमदर्द में है, और उससे जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदार बनता है। पहले मामला क्या थे कि इनका ट्रांसफर कहीं भी होता था, अभी ऐसा नहीं, जहाँ पे शोहर है वहीं पर बीवी का ट्रांसफर हो जाएगा। ये बनने में कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम बच्चियां भी बनती हैं और कामयाबी के साथ में वो सब कर रही हैं। तो उसके लिए 12वीं के बाद जो है वो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज की किताबें कई सारी मार्केट में दस्तियाब हैं, उनसे स्टडी करने को बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जिद्दी बच्चों को किस तरह काबू करें? जिद्दी बच्चों की हर जिद पूरी मत कीजिए। Don't translate your love into material things. कि नहीं ले लो, तेरा मोबाइल लो, अच्छा तो ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ऐसा मत कीजिए। आपको हुदूद कायम करनी चाहिए, आपके चेहरे से वो वकार झलकना चाहिए। हम तो बचपन में हमको कभी अम्मी का मार नहीं खाना पड़ा। हाँ, अम्मी गुस्सा होगी, बस समझ में आते ना। अम्मी के आंखों से उड़न पड़ रहा है कि अम्मी गुस्सा होगी। वो आपकी वो जहन, वो बात, वो जो है पर्सनालिटी में आपके आना चाहिए। तो उस वहीं से जो है वो जिद का मामला ये होता है। अब जो भी जिद हमेशा अगर हम उनकी अच्छी बुरी उल्टी सीधी अगर पूरी करते रहते हैं, तो उसके बाद में बच्चे जो हैं वो एक दिन ऐसे हो जाएगा कि वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, जिद पूरी करने की वजह से। तो वो जिद हर कोई पूरा मत कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरा बच्चा स्कूल जाने के वक्त बहुत रोता है और परेशान करता है। इस धरती का कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, ये याद रखिए। कोई बच्चा इसलिए तैयार नहीं रहता है कि वो इसको, और उसकी मिसाल मैं ये दूंगा। आपका बच्चा जो शीर-ख्वार बच्चा 6 महीने का बच्चा डॉक्टर के पास बहुत शदीद बुखार में तप रहा है, डॉक्टर के पास लेके गए। अब उसकी इतने बुखार है कि इंजेक्शन लगाए बगैर उसका बुखार उतार नहीं सकता। अब इंजेक्शन लगाने को आप मेंटली तैयार रहते क्या? माँ तैयार रहती कोई? लेकिन वहां माँ का रोल चेंज हो जाता है। माँ क्या करती है? डॉक्टर उसको यूं पकड़ता है, माँ उसके पाँव पकड़ती जकड़ती है उसका, और अब्बा को इस तरह इसका सर पकड़ो, ये बिल्कुल सब जकड़ के लगाओ लगाओ इंजेक्शन उसको। माँ जालिम नहीं है, लेकिन माँ को मालूम है कि ये उसका इलाज है। इंजेक्शन अगर लगाएंगे तो बच्चा जल्दी अच्छा हो जाएगा, इसलिए माँ बेरहम जो है वो हो जाती है। तो बच्चा स्कूल में जाना नहीं चाहता, बेरहम बनी है उसमें, वो कोई भी नहीं देते, रोने दो।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। मेरी बड़ी बेटी ने एमडी में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया। एमडी में 2 गोल्ड मेडल मिले, पूरे महाराष्ट्र में टॉप करने वाली वो हिजाब में रहते हुए, मुकम्मल हिजाब में रहते हुए एमडी में टॉप, ओरल एग्जाम में हिजाब में, चारों एग्जाम में गैर मुस्लिम थे, उन्होंने इंटरव्यू दी, हमने टॉप किया। लेकिन वो मेरी बच्ची, मुझे याद है कि केजी में वो कभी भी जाने को तैयार नहीं होती। मेरा घर काफी दूर था स्कूल से, और वहां तक उसके रोने की आवाज आती है। हमने कहा ये नहीं क्या है, पलट के नहीं रखे, उसको छोड़ के आ गए। 10-15 दिन में आदत हो गई उसको, हमको जरा सा भी ये नहीं हुआ। एग्जाम के टाइम में एग्जाम फीवर रहता है, बच्चे लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं, कोई रहम नहीं करने। हाँ ठीक है, प्रेशर मत लाइए, अपने खौफ को थोपिए मत, लेकिन उसके लिए कोई बच्चा तैयार नहीं होता है जाने के लिए। आपको इस मामले में एक बेरहम बनना है। नेक्स्ट बहुत सारे सवालात मोबाइल्स के ताल्लुक से थे। हाँ, और उसके बाद बहुत माफ सारे कर सवालात ऐसे थे कि आपके लेक्चर में उसका जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। जी, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो ऐसे थे कि आपके लेक्चर में उसका जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है। तो मैं अपनी बात इस दुआ पे खत्म करता हूँ कि अल्लाह करे कि आप और हम अच्छे और कामयाब वालिदैन साबित हो जाएं, कामयाब माएँ आप लोग साबित हो जाएं। इन ये दुआओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ख़वातीन यहाँ पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमाते हैं फिर से आ जाएं, और क्योंकि ख़वातीन का इजलास है, हमने थोड़ी देर के लिए आपको खाली ये करने के लिए आपको बेघर कर दिया था यहाँ से, लेकिन आप आ जाएं, वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया।